Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. In a way, as I gave you the background, China is what I call of the past technology, manufacturing, which we are slowly getting. We don't want to stay behind. But large amount of wealth will be created using the exponential newer technology, which also doesn't require much capital. And China, what I call, is a one company of 1.4 billion people. India is a one country of 1.4 billion people. આપણું બોટમ્સ અપ છે. દરેક માણસ, દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે મહેનત કરે છે. કદાચ મોદીને ગાળો બી આપતો હશે, પણ દરેક વ્યક્તિ પોતાનું ઉપર આવવાનો ટ્રાય કરે. ચાઇનામાં શું છે કે 5 મોટા માણસો ડિસાઇડ કરે કે ભાઈ આ કરવાનું, અને પાછલા 30-40 વર્ષમાં એમણે દેશ માટે ઘણું સારું કર્યું, જેથી એમનો દેશ સારો ઉપર આવ્યો. પણ એ જ 5 માણસો કદાચ એકાદ ખોટું ડિસિઝન લે તો દેશ નીચે બી જઈ શકે. જ્યારે આપણે શું છે કે બધા પોતપોતાની રીતે ખેંચાખેંચી કરે છે, તો આપણને લાગે આગળ ક્યાં વધીએ છીએ, આપણે તો બધા એકબીજાને ખેંચીએ જ છે. પણ એમાં બી ધીરે ધીરે જે સારું ઉપર આવશે એ પાછું બીજા બધાને ખેંચી જશે. હું જ્યારે યંગ હતો ત્યારે આઈ ક્રિએટેડ એન ઇન્ડેક્સ કોલ નિફ્ટી ઇન 1995. એ વખતે 50 કંપનીઓ ભારતની સારામાં સારી મેં લીધેલી. એમાં કોઈ પણ આઈટીની કંપની નથી 1995માં. આજે 28 વર્ષ થયા એને. તમે ટેલિકોમ અને આઈટી ગણો તો ઇટ વિલ બી ઓલમોસ્ટ 20% પ્લસ ઓફ ધ રાઈટ ટોટલ વેટેજ ઇન ધ ઇન્ડેક્સ. એટલે ઇન્ડિયાએ જે કોઈ કીધું નથી કે તમે આમ કરો, પણ ઇન્ફોસિસ એ વખતે ઇસ્યુ આવેલો, આઈપીઓ 70 રૂપિયાનો ઇસ્યુ આવ્યો તો ફેલ ગયેલો. કોઈને ખબર જ નથી આઈટી શું છે. તો જે લોકોએ અંડર રાઇટિંગ કર્યું હતું એ લોકોએ બચારાએ કહે ને કે મને કંપની લેવું પડ્યું, કારણ કે અંડર રાઇટિંગ તમે કરો એટલે લેવું પડે. તો એ લોકો એક્સિડેન્ટલ બિલિયનર થઈ ગયા. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે જે એ ઇન્ફોસિસના ને બધા જોઈ અને બીજા બધા કેટલા પોતાની એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ કરવા ઉપર આવ્યા, પછી એમની જે નેક્સ્ટ જનરેશન આવી એને જોઈને બીજા બધા ઉપર આવ્યા, પછી ત્રીજી. એટલે આપણે ત્યાં જે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપનો જે અત્યારે ધાવો છે એ બધો ધીરુભાઈ અંબાણી 1977 એમની રિલાયન્સ લિસ્ટ થયેલી, પછી બધી આઈટીની કંપનીઓ લિસ્ટ થઈ, એ બધું ઇન્ટરનલ એપ્રિસિએશન કે ભાઈ તમારે વેલ્થ કરવી હોય તો તમે ચોરી કર્યા વગર બી ટેકનોલોજીનો ઇસ્તેમાલ કરીને તમે પોતાને વેલ્ધી બનાવી શકો, તમારા એમ્પ્લોઈઝને વેલ્ધી બનાવી શકો, તમારા સમાજને વેલ્ધી બનાવી શકો. એ પરિસ્થિતિ જે આપણે સર્જન થઈ છે એ કોઈ ગવર્મેન્ટે સર્જી નથી, પણ સંજોગોને અનુસાર આપણે બધા કે ને પોતપોતાની રીતે ટ્રાય કર્યો, અને એમાં આ રીતને આપણે સંપત્તિનું સર્જન થયું, એકબીજાના ટ્રસ્ટનું સર્જન થયું. જેવી રીતે હું તમને કહું ઘણીવાર કે આપણું પર કેપિટા ઇન્કમ અત્યારે બી વન ઓફ ધ લોએસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ છે. $2,700 પર કેપિટા પર પર્સન ઇઝ વેરી લો કમ્પેર ટુ ઇવન આફ્રિકા. ઇવન મોરેશિયસની પર કેપિટા ઇન્કમ $7,000 છે, આપણી 2,700 જ છે. પણ આપણું જે માર્કેટ છે અત્યારે એનએસઈ 4th લાર્જેસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ છે, આફ્ટર અમેરિકા, ચાઇના અને જાપાન. તો $2,500-2,700 એવો કોઈ કન્ટ્રી નથી જ્યાં આવું માર્કેટ છે, જેમાં એકબીજાને ટ્રસ્ટ કરીએ. સપોઝ તમે ગુજરાતમાં કંપની ખોલી હોય તો કોઈ શ્રીનગરમાંથી વ્યક્તિ એમનો પોતાનો $1,000 બી તમારી કંપનીમાં નાખે તો એને ફૂલ ટ્રસ્ટ છે કે તમે જ્યારે તમારી કંપનીમાં પૈસા બનશે તો એને બી એનો એક હિસ્સો મળશે. એને ગવર્મેન્ટ પર ભરોસો છે, જ્યુડિશિયલ પર ભરોસો છે, પોલીસ પર ભરોસો છે, સેબી પર ભરોસો છે, એક્સચેન્જ પર ભરોસો છે, પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી એન્ટરપ્રેનર પર ભરોસો છે કે આ એન્ટરપ્રેનર મારો ચોર નથી. તો એ લીપ ઓફ ફેથ છે, તમારા પર ટ્રસ્ટ કર્યો છે. ગરીબ દેશમાં તો શું, અમીર દેશમાં બી કોઈ ભાઈઓને પૈસા નથી આપતું. તો અંજાન વ્યક્તિને કોઈ પૈસા આપે છે, $1,000 તમને એમ થાય કે $1,000 શું છે, પણ એ વ્યક્તિ જે $1,000 મૂકે છે શ્રીનગરમાંથી એને માટે $1,000 ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બસ, રાઈટ. એ $1,000 તમને કોઈ દિવસ ઓળખતા નથી, તમારી કંપનીમાં આવવાના નથી, એ તમને પૈસા આપે છે. તો કેટલો બધો ટ્રસ્ટ છે. તો હું કહું છું કે ભાઈ 75 વર્ષમાં આપણે શું એચીવ કર્યું એઝ અ કન્ટ્રી? આપણે કર્યો એચીવ ટ્રસ્ટ. આપણે વધારે ટ્રસ્ટફુલ સોસાયટી થયા, અને જે સોસાયટી એકબીજા પર ભરોસો કરે એ સોસાયટી વધારે ને વધારે વેલ્થ ક્રિએટ કરે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વેર બેઝિકલી સ્ટોક માર્કેટનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. વોટ વી ડુ, વી મેન્યુફેક્ચર ટ્રસ્ટ. બાકી અમે તો ઇન્ફોર્મેશન કંપની પાસેથી લઈને ઇન્વેસ્ટરને આપવાની, બાકી તો અમારી પાસે કોઈ સત્તા નથી કે કોઈને જેલમાં નાખીએ કે આમ કરીએ કે તેમ કરીએ. પણ એન્ટરપ્રેનર ઈમાનદારીથી પૈસા લઈ અને જ્યારે પ્રોફિટ બને
તો એના શેરહોલ્ડરને વહેંચે છે અને ઉત્તરોત્તર એની પ્રગતિ થાય તો ઉત્તરોત્તર વહેંચે, એવું નહીં કે પૈસા આવે ત્યારે પોતાના ગજવામાં નાખી દેવાનું. તો એ જે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ છે એ બધું ઇન્ડિયામાં અત્યારે વર્લ્ડમાં ટોપ છે. તો એટલા માટે $2,700 પર કેપિટલ ઇન્કમ હોવા છતાં આપણા બધા માણસો અત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી જાય. 17% ઘરો, 5 કરોડ ઘરો, ટોટલ ભારતમાં 28 કરોડ ઘર છે, એમાંથી 5 કરોડ ઘર ડાયરેક્ટલી સ્ટોક માર્કેટમાં નિવેશ કરી રહ્યા છે. તમે EPFO ને ઇન્સ્યોરન્સ ને એ બધું ગણો તો લગભગ 30% જેવા થઈ જાય. તો એ લોકોને ભારતમાં ભરોસો છે, ભારતના ભવિષ્યમાં ભરોસો છે અને ભારતના એન્ટરપ્રેનર પર ભરોસો છે. તો મારું રિક્વેસ્ટ શું છે કે ગુજરાત ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સના બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટોને કે ભાઈ આ ભરોસો ના તોડશો, કારણ કે આ ભરોસો એવી વસ્તુ છે કે ઇટ્સ લાઈક અ પોન્ડ આઉટ ઓફ વિચ ઓલ ઓફ અસ આર ડ્રિંકિંગ. એક જણ એમાં ઝેર નાખે કે એને ગંદુ કરે તો આપણે બધાને ડાયરિયા થઈ શકે છે. તો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે, અને ટ્રસ્ટ એટલી બધી ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે બનાવવાની, આ બન્યો છે આપણે, પણ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇઝી ટુ લૂઝ. સો દેટ ઇઝ વેર આઈ થિંક ટુડે $5,000 પર કેપિટલ ઇન્કમમાં આવો કોઈ કન્ટ્રી નથી, $10,000 બી નથી. $20,000 એક કન્ટ્રી છે, $20,000 પર કેપિટલ ઇન્કમમાં ચાઇના, કે જ્યાં માર્કેટ નીચે જાય ને તો સરકાર જઈને ખરીદે છે. આપણે ત્યાં ગમે હોય સરકાર ટેક્સ ભરાવે છે. આપણું માર્કેટ ઇટ ઇઝ ઓન ઇટ્સ ઓન, નોટ બિકોઝ ગવર્મેન્ટ ઇઝ સપોર્ટિંગ ઇટ, રાઈટ? અને દેટ ઇઝ લાર્જલી બિકોઝ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ ટ્રસ્ટ ઇન અવર એન્ટરપ્રેનર્સ એન્ડ અવર એન્ટરપ્રેનર્સ ઓનેસ્ટી. We can do only so much as regulators, but what you do is adding value to everyone and all the future generations of entrepreneurs that are going to come. SME ऐसी चीज है कि जहां से ही बड़ी कंपनियां आती है. इन्फोसिस भी छोटा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नरोड़ा का प्लांट, आप पता नहीं आप लोगों ने किसमें देखा होगा, आज रिलायंस इंडस्ट्री का नरोड़ा प्लांट कोई पूछता नहीं है, बट पहला प्लांट वही था रिलायंस का, राइट? तो जो भी बड़ा उद्योग आता है वो SME से ही जन्म लेता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप बड़ा होकर ही जन्म लेता है. तो दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी प्रगति होगी वो SME के जरिए ही होगी. और आगे SME का कैसे हाल होने वाला है कि जैसे ये PLI वगैरह की वजह से इंडस्ट्रीज आ रही है, तो उसमें अभी आईफोन आ रहा है या माइक्रोन आ रहा है, जो गुजरात में भी वो, तो उसकी जो एंसिलरी कंपनीज है उसको इवन ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग तरीके का मशीन चाहिए होगा, अलग तरीके का ट्रक्स चाहिए होगा, अलग तरीके का सप्लाई चेन चाहिए होगा. तो उसके लिए भी कंपनियां खड़ी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो कहाँ से खुद ही कर पाएगा. वैसे ही अलग अलग तरीके की कार्स की कंपनियां आ रही है, जैसे टेस्ला से बात चल रही है. तो हर एक जो उद्योग है अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगा. इन स्पेस टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, जो कई प्राइवेट सेक्टर में स्पेस कंपनियां भी भारत में आ रही है आज, तो उनको भी अलग अलग तरीके का मशीन चाहिए होगा, CNC या उससे भी बेहतर. और अपने वहाँ जो मैंने तो गुजरात में SME में बहुत काम किया है, मेरे वहाँ करीब 120 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है NSE में. गुजरात से ही मैंने करीब 400 कंपनियां, 397 कंपनियां लिस्टेड है आज NSE के इमर्ज SME प्लेटफॉर्म में. उसमें से 120 से 130 कंपनियां गुजरात से ही है. तो मैंने आप सोच नहीं सकते हो ऐसी कंपनियां आती है, जैसे बायोमास की कंपनियां आती है जो आपका जो बायोमास को सुखा के रखती है और आपके टरबाइन चला के देती है, और आपकी जो ईंधन की बचत होती है उसमें से आपके साथ हिस्सा लेती है. तो ऐसे ऐसे बिजनेस मॉडल बन रहे हैं कि जो पहले कभी लग रहा था इसमें क्या बना सकते हैं, करोड़ों रुपए कैसे बन सकते हैं, लेकिन लोग बना रहे हैं और ज़्यादा ज़्यादा बनाए. तो मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज IT की है, फार्मा है, जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आगे जाके बायोटेक में आपको जो मिलेगा रिटर्न्स, और गुजरात में बहुत सारी कंपनियां बायोटेक में भी काम करेगी, क्योंकि गुजरात एक तरह से फार्मास्यूटिकल का भी एक हब रहा है. और R&D जो गुजरात में होती है वो अलग तरीके की R&D है, तो जो एकदम कॉमर्शियल हो जाती है तुरंत. छोटा छोटा उद्योग जो है वो अपना काम तेजी से बढ़ा सकता है. तो और जो इंटरमीडिएट, जो हम कोविड में हमको पता चला कि अपनी जो इंटरमीडिएट फार्मास्यूटिकल की जितनी भी इंडस्ट्री थी सब खत्म हो गई थी, क्योंकि चाइना ने एक टारगेट करके उनको खत्म किया था. तो आज वापस हम उसको खड़ा कर रहे हैं.
तो ऐसी भी चीज़ आएगी जो वेंटिलेटर्स जो बनाने थे, हम गुजरात में काफ़ी कई कंपनियों ने अपने अपने वेंटिलेटर्स बनवाए कोविड के दौरान, हाईटेक, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड हाईटेक एक्टिविटी। तो मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे उसमें और प्रगति होगी, क्योंकि नेचुरली जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो सब कंपनियां बढ़ेगी। लेकिन जो आप हाईटेक में भी साथ में रहोगे, कोशिश करोगे अपने जो भी एरिया में आप काम करते हो उसमें आप थोड़ा वर्ल्ड में हाईएस्ट टेक क्या है आपके एरिया में उसका ध्यान रखोगे। तो मशीनिंग में जैसे एक अल्केश भाई है, वो मशीनिंग का टरबाइन वो सब बनाते हैं, तो अहमदाबाद के बगल में ही बनाते हैं। तो उनको मैं कई बार बोलता हूँ आप बाहर के जाके देख के आइए, और ऐसा नहीं कि आपका काम किसी से कम है, लेकिन एक दो ऑर्डर लेके आओगे तो आपको लगेगा कि मैं वर्ल्ड में भी तो कॉम्पीट कर सकता हूँ। आप इंडिया में कॉम्पीट करते हो क्योंकि हमारा कॉस्ट बहुत कम है, हमारी स्किल सेट बहुत अच्छी है, लेकिन हमको एक्सपोजर नहीं है बाहर का। थोड़ा सा बाहर का एक्सपोजर लेंगे तो हम चाइना से कम नहीं है, और जो भी सरकार की जो नीतियां है उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह भी थोड़ा आसान हो रहा है। तो इसकी वजह से आज भी मैं पढ़ रहा था कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो करीब 15% था पहले इकोनॉमी में, आज करीब 8-9% हो गया है। तो बिकॉज दैट इज द फ्रिक्शन इन द इकोनॉमी, वो किसी के हक का नहीं है, बिकॉज वो वहाँ माल लाने में ले जाने में ही उतना पैसा लग जाता है, या तो उस पर डिले होता है तो हमारा डेमरेज लग जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो अब सरकार उस पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, सब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लग रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर लग रहे हैं, यहाँ पे धौलेरा का सिस्टम आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें आपको एक बहुत तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन होते दिखेगा। लेकिन सर्विसेज सेक्टर जो है हमारा एक इंजन ऑफ ग्रोथ रहा है, और उसमें क्या है कि इनपुट की कीमत बहुत कम है क्योंकि मैन पावर ही है, राइट। तो उसकी वजह से वो जो अपना फॉरेन का जो एक्सचेंज आता है हमारे पास, वो हमको बाकी जो सब चीज़ें इंपोर्ट करनी है आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो मशीनरी वगैरह मंगवानी है, वो भी हम वो पैसे जो आते हैं रेमिटेंसेस, करीब $125 बिलियन, $125 बिलियन रेमिटेंसेस से आते हैं। हमारे जो वर्कर्स बाहर काम करते हैं गल्फ में या अमेरिका में, यूरोप में, वो लोग हमको हर साल $125 बिलियन भेजते हैं। हमारी जो सर्विसेज कंपनियां हैं करीब $450 बिलियन का सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़े देर तक लंबा ले जाएगी, प्रॉब्ली 425 का अगले 10 साल में 1 ट्रिलियन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। बट जो मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक जो पार्ट है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे आईफोन का हो गया, चिप्स का हो गया, बाकी बायोटेक का हो जाएगा, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमको अगला एक नया मकाम तक लेके जाएगी। और गुजरात एक तरह से उसके पास अच्छा दरिया है, पोर्ट्स है, जो बाकी राज्यों के पास नहीं है। जो नॉर्थ में आप देखते हो वहाँ पर दरिया ही नहीं है, तो यहाँ पर है। तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गुजरात ने बहुत नाम कमाया है, माने जितनी रिफाइनरियाँ हैं, जितनी स्टील की मिलें हैं, सभी इस तरफ है। लेकिन अब जो हाईटेक का काम है वो भी आ रहा है, और वो पूरे भारत में जहाँ जहाँ सी कोस्ट है वहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा है, बिकॉज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम रहती है। लेकिन वर्कर पॉपुलेशन अपस्टेयर्स है, तो वहाँ से इनको यहाँ पर लाना पड़ेगा, या तो हमें वहाँ पर फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज करना पड़ेगा। तो सर्विसेज तो हो रही है क्योंकि वहाँ पे टेलीकॉम लाइन चाहिए, पूरा इंडिया का टेलीकॉम ठीक हो गया है। लेकिन जो रोड्स ठीक नहीं थे, आज आप सबको दिख रहा है 8 लेन के 16 लेन के रोड्स बन रहे हैं पूरे भारत में। अब दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नया बना है जो अब उद्घाटन होने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल नॉर्थ तक भी ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है पहुँचेगा, बिकॉज वहाँ पर वर्कर ज़्यादा है। ब्रॉडली ऐसी कोई फॉर्मूला होती नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडली जैसे मैंने कहा करीब 397 कंपनियां लिस्ट हुई है, 400 गिन लो, तो उन लोगों ने एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म से 8,000 करोड़ रुपये कलेक्ट किया है। तो करीब एवरेज 20 करोड़ है। कोई कंपनी ने 2-3 करोड़ भी लिए हैं, कोई कंपनी ने 40 करोड़ भी लिए हुए। तो आप 2-3 करोड़ भी मार्केट से उठा सकते हैं, और 100-500 करोड़ भी एसएमई में भी उठा सकते हैं मार्केट से। जितनी
मार्केट को लग रहा है भाई आपकी क्षमता कितनी है, आपका ग्रोथ कितना होने वाला है, आपका पास्ट कैसा है, उसके हिसाब से आप कौन सी इंडस्ट्री में हो, आपको किस तरह का कैपिटल का ज़रूरत है। जहाँ कैपिटल का ज़रूरत नहीं है तो लेने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन जहाँ कैपिटल का ज़रूरत है और ग्रोथ नहीं है तो भी लेने का फ़ायदा नहीं, तो क्योंकि इन्वेस्टर को तो ग्रोथ चाहिए। तो इस हिसाब से आपको सोच के आपको जो भी ज़रूरत हो, लेकिन मिनिमम 25% जो है आपकी कंपनी का आपको IPO के समय SME में पब्लिक को देना है। तो आपको सपोज आपको लग रहा है कि भाई मेरे कंपनी का वैल्यूएशन 70 करोड़ है या 80 करोड़ है, तो 25% हो जाता है तो 20 करोड़ आप मार्केट में मिनिमम देना पड़ेगा। तो और मिनिमम 50 इन्वेस्टर चाहिए होते हैं इन IPO फॉर SME। तो वो 50 इन्वेस्टर आपके हो गए, उन्होंने आपको इतना पैसा दे दिया तो आपकी कंपनी लिस्ट हो जाती है। और फिर जैसे रिलायंस ट्रेड होती है या ACC ट्रेड होती है, उसी तरह से आपकी कंपनी भी ट्रेड होती है। लेकिन उसके फ़ायदे क्या है कि आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो उस समय आपका जो शेयर का वैल्यू भी बढ़ता है। जबकि कईयों को लगता है कि भाई नहीं, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल मुझे पैसा देगा, और हर रोज़ हम इकोनॉमिक टाइम्स में पेज 3 में पढ़ते हैं कि भाई इसको इतना मिल गया, उसको इतना मिल गया। लेकिन वो एक तरह से कहते हैं ना कि IIT में किसी को 1.5 करोड़ की सैलरी मिल गई, वैसा है कि 2-3 साल में एक को मिलती है, बाकी सबको पेरेंट्स को लगता है कि यार तुमको तो 15 लाख की सैलरी मिली, 1.5 करोड़ की मिलनी चाहिए थी। वो हाल है, किसी को नहीं मिलता है, राइट। तो जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको कोई टच नहीं करने वाला है, उसको हम एक दूसरे को ही टच करेंगे, राइट। तो जिनको कुछ नहीं मिलता और उसको मिलने वाले में वो लोग आपके हाथ पांव मुंह सब बांध लेते हैं। कोई प्राइवेट इक्विटी आपको देता है, वो एक्चुअली इक्विटी नहीं है, वो डेट है। वो आपको ऋण देते हैं, उस पर कहते हैं कि आपको मैं 20 करोड़ दे रहा हूँ या 100 करोड़ दे रहा हूँ, लेकिन 5 साल के बाद आपसे 500 करोड़ लूंगा, या तो आपका शेयर का प्राइस 500 से ज़्यादा होगा। तो आप जब नहीं कर पाओगे तो आपकी कंपनी उनके हाथ में चली जाएगा। यहाँ पर आप लिस्ट करते हो लेकिन आप कंपनियाँ चला पाते हो। पूरा जो इंडिपेंडेंस है आपको आज, आपको उस समय भी मिलता है, खाली आपको और लोगों को जवाब देना पड़ता है जो दूसरे निवेशक है। तो जो स्टॉक मार्केट में आने से आपको इतने फ़ायदे मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि जैसे आपको किसी तरह का कोई क्लॉजेस जो आपको प्राइवेट इक्विटी वाले या वेंचर कैपिटल वाले डालते वो है नहीं। दूसरा है कि आप वो आपका जो शेयर है उसको आप करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हो। आपको किसी को हायर करना है, उसको स्टॉक ऑप्शन दे दो तो वो आपकी करेंसी हो गई, जैसे नारायण मूर्ति साहब ने किया इन्फोसिस में। आपको किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है तो भी अपनी कंपनी के शेयर दे सकते हो, तो वो भी एक करेंसी हो गई कि नहीं, राइट। आपको फ्री में पब्लिसिटी मिलती है, हर रोज CNBC पे, NDTV पे आपका नाम हर रोज फ्री में आएगा, है ना, विजिबिलिटी आ रही है, आपकी ब्रांडिंग एक्टिविटी, ब्रांडिंग हो जाती है। आपको फ्री में बेंचमार्किंग हो जाता है, हर वो एनालिस्ट आपको बोलेगा कि भाई आपका तो लेबर कॉस्ट टू सेल्स रेशियो तो इतना ही है, वो दूसरे में ज़्यादा है, कम है, वर्ल्ड में इतना होता है, आपका रॉ मटेरियल का भाव यहाँ पे इतना है, वहाँ तो दूसरे में कम है। तो आपका बेंचमार्किंग भी घर बैठे बैठे हो जाता है, तो पीछे भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। और आप उस पर लिखो अपने विजिटिंग कार्ड पे कि भाई मैं लिस्टेड हूँ NSE पे, तो बैंकर जो है आपको बाहर बिठाता था, वो आपको बाहर लेने के लिए आएगा कि साहब आप आ जाइए। जब आप ऋण लेने जाते हो तो डेट इक्विटी रेशियो मांगते हैं, तो इक्विटी कहाँ से लाएगा, तो ये आपको इक्विटी लेके दे रहा है। और फ्यूचर में भी आपने कंपनी ने अच्छा किया है, आपने 20 करोड़ उठाए हैं, उसके बाद उसके प्रॉफिट बढ़ा और आपको बाद में 100 करोड़ लेने जाना है, तो लोग आपको खुशी खुशी देंगे क्योंकि आपने ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है ना। तो आपको जब भी जैसे धीरू भाई ने किया, जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ी पब्लिक से उठाया उन्होंने, क्योंकि पब्लिक को पता था कि इसने हमको अच्छा रिटर्न दिया है तो आपको फिर पैसे देते हैं। तो मेरा ऐसा कि ये जो खुद का भी भला होता है और समाज का भी भला होता है, तो ये जो चीज़ें है। और आपको दूसरा एक चीज़ जो कोई बताता नहीं है कि आपका 10% टैक्स लगता है, जबकि जब आप बेचोगे अपना शेयर तो आपको लिस्टेड कंपनी में 1 साल से ज़्यादा आपने शेयर होल्ड किया, विच प्रमोटर ऑलवेज होल्ड्स, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगता है वहाँ पे। अदरवाइज आपको 20% प्लस 2-3% एक्स्ट्रा वो सरचार्ज वगैरह लगा के 23-24% लग जाता है, तो आपका टैक्स भी यहाँ पे आधा लगता है। आपको सक्सेशन प्लानिंग करनी है कि घर में 2-3 बच्चे हैं, तो आप एक जन को चलाने दो, दूसरे जन बैठ के खा रहे हैं बिकॉज उसमें से इनकम आ रही है। और आपको जो इनकम मिल रही थी, कोई आदमी सब 100 करोड़ का टर्नओवर है और 5 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से टैक्स गिन लो तो 4 करोड़ होगा, खुद की जेब में आएगा तो
2-3 करोड़ ही आएगा, तो आपको साल में 2-3 करोड़ का इनकम जेब में आता है। लेकिन 5 करोड़ का प्रॉफिट है और आपको प्राइस अर्निंग का 20 का रेशियो लगता है, तो आप 100 करोड़ का वेल्थ बन सकता है कि नहीं? तो आपका इनकम को आपको वेल्थ में कन्वर्ट करना है तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा। और सभी लोगों को लगता है कि भाई मैं ऐसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बना हूँ, मुझे भी धीरू भाई अंबानी बनना है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी के तो मैं कई बार कहता हूँ कि भाई धीरू भाई अंबानी हो, रतन टाटा हो, नारायण मूर्ति हो, अजीम प्रेमजी हो, वो तो अलग अलग बिजनेस करते थे, लेकिन उनमें समानता क्या है कि सभी बिलियनर बने स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करने से। तो आपको बिलियनर बनना है तो स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा, नहीं तो बैठे रहो अपनी दुकान चलाओ घर पे। ये शायद से आपने सर एक बहुत बड़ा सफलता का फॉर्मूला एसएमईज को दिया है, क्योंकि कई बार एसएमई हेजिटेट करते हैं कि हम पब्लिक में जाएं, पब्लिक मनी के लिए जाएं या न जाएं। तो आई थिंक ये आपके इस टेक के बाद मुझे उम्मीद है कि जो 400 कंपनियां आपके एनएसई पर रजिस्टर्ड, उसकी संख्या बढ़ने वाली है इस इंटरव्यू। कहीं ना कहीं प्रमोटर भी डेविएट हो जाते हैं कभी कभी अपने डायरेक्शन से। आपने ये बात करी, अभी जो एग्जांपल शेयर किया न्यू एज टेक्नोलॉजी से, अभी ये हो रहा है कि एक वैल्यूएशन गेम चल रहा है और काफ़ी एसेट लाइट मॉडल होता है सर्विस इंडस्ट्रीज़ का या टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनी होती है, उनके पास एसेट कुछ नहीं है, बट एक वैल्यूएशन के बेस पे जाके आप पैसा लेते हो। तो क्या ये जो तरीका है या जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, क्योंकि कई बार ये स्टार्टअप भी सोचते हैं कि हम एक कंपनी बना लें, हम एक वैल्यूएशन को क्रिएट करें, एसेट लाइट मॉडल है, एग्जिट पा रहे हैं और पैसा बना लें। तो क्या ये एक बबल चल रहा है, ये जो बहुत ही जल्दी कॉलेप्स होगा, या ये बिल्कुल सही तरीका है काम करने का, ये इंडस्ट्री को चलाने का? नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले जब भी बहुत पैसे बनाने थे तो बहुत पैसे डालने पड़ते थे जी। तो उसको कैपिटलिज्म कहते हैं कि पैसे डालो, पहले कैपिटल डालो तो आपको इनकम मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी वैसे वैसे कम पैसों की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा एक्सपोजर की, ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत पड़ी। तो अभी कई इंडस्ट्रीज जो नहीं आ रही है जिसमें आपको कम पैसे डालकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो जो वैल्यूएशन है वो आपके इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, वैल्यूएशन है क्या कि आप कितना मुनाफा कमा सकते हो। अच्छा, नहीं कि आपने 1000 करोड़ डाल दिया तो मुझे इतना वैल्यूएशन मिलना चाहिए। आप 1000 करोड़ बना सकते हो कि नहीं? तो मेरा ऐसा कि कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएशन कई बार बनता है वो एक्सपेक्टेशन में बनता है और एक्सपेक्टेशन कई बार इरेशनल होते हैं, अनरीजनेबल होते हैं कि ये भारत का 140 करोड़ की जनसंख्या है तो ये बंदा ये एक्टिविटी करेगा तो ये लोग इतना हो जाएगा, उतना, इसलिए उसका इतना वैल्यूएशन हो गया। और जो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट एक दूसरे को बेचते रहते हैं 10 का 100, 100 का 1000 करके, तो सबको लग रहा है ऐसा वैल्यूएशन हो गया। जबकि स्टॉक मार्केट में जब आते हो, फाइनली वो लोग भी स्टॉक मार्केट में आना है, तो उस टाइम हम लोग, हमारे जो निवेशक है, पूछते कि प्रॉफिट कितना बन रहा है या प्रॉफिट कितना बनेगा। तो क्योंकि हिस्सा तो प्रॉफिट से आने वाला है, ड्रीम का तो नेचुरली हम भी ड्रीम खरीद रहे हैं, फ्यूचर के लिए ही खरीद रहे हैं, लेकिन इतना भी लंबा मत खींचो है ना, क्या पीछे जाग जाओ और है ना। सपना टूट गया। तो कहीं ना कहीं तो दुनियादारी से, जो जीवन से उसका जुड़ा होना चाहिए कि आप आज 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, या तो 100 का हो सकता है। लेकिन आप बोलो कि नहीं 1000 का बिजनेस कर रहे हैं और 10 लाख करोड़ हो जाएगा इसलिए आज हमको ये वैल्यूएशन है, तो प्राइवेट मार्केट में हो सकता है। लेकिन जो छोटे छोटे निवेशक है वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो पूछते कि भाई ये होगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आई कॉल द न्यू मैथोडोलॉजी कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल, और ओल्ड मैथोडोलॉजी इज कैपिटलिज्म, राइट। बट दोनों में से जो प्रॉफिट बना है वो सही है, बाकी सब बकवास है। फैंटास्टिक। मतलब अगर आपका एसेट लाइट मॉडल भी है, सर्विस इंडस्ट्री भी है, अगर आपका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा है। सर, गुजरात में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, गांधीनगर नज़दीक है यहाँ पे, और गिफ्ट की बात ना हो या गिफ्ट निफ्टी की बात ना हो तो थोड़ा इंटरव्यू में और मज़ा नहीं आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या था कि SGX निफ्टी ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने SGX से शिफ्ट करके हम लोग गिफ्ट निफ्टी पर आए। तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक मोटिव था, या और इसका बेनिफिट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या इंडियन इकोनॉमी में क्या होने वाला है? नहीं, एक तो क्या है कि हमको समझना पड़ेगा गिफ्ट क्या है। गिफ्ट सिटी जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें ये सब चीज़ें मालूम नहीं चलती है। हमने सोचा नहीं है इसके बारे में, भले गुजरात में हम रहते हो, कि गिफ्ट सिटी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ भारत के लिए विदेश का जो निवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ले पाएँ।
और कम से कम खर्चा जो विदेश के निवेशक है उनको लगे, कम से कम टैक्स लगे। जो उसका एक पैरेलल क्या है कि हांगकांग और चाइना पिछले 40 सालों में जितनी भी प्रगति चाइना की हुई, उसमें जितना भी पैसा है उसमें से 80-90% हांगकांग से आया है। हांगकांग वॉज द गेटवे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू चाइना। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर गुजरात में मुख्यमंत्री थे आदरणीय मोदी जी, तो उन्होंने एक सपना देखा था कि हम एक ऐसे शहर की रचना करें जो कद में छोटा हो, लेकिन जो हांगकांग ने चाइना के लिए जो रोल किया उसकी प्रगति में, जो वर्ल्ड का कैपिटल लेकर के चाइना को दिया अपनी प्रगति के लिए, वैसा ही हम एक गिफ्ट सिटी बनाए। तो उसके लिए उन्होंने 2007-8 से इसके ऊपर काम किया था। तो दैट इज़ वेयर गिफ्ट सिटी का जो मकसद यही है कि फॉरेनर्स को भारत के साथ डीलिंग के लिए आसानी हो, निवेश करने के लिए आसानी हो, तो उसके लिए ये सिटी बनाया था। उसमें कोई टैक्स नहीं है फॉरेनर्स के लिए, और जो कंपनियां वहाँ पर बनती है उसमें भी टैक्स 15 साल में से 10 साल नहीं है, और 5 साल में यू कैन सिलेक्ट कि कौन सी 5 साल आपको टैक्स भरना है 15 साल में से। तो टैक्स एक तरह से टैक्स फ्री जोन तो नहीं कहेंगे, बट टैक्स कम माने लेस टैक्स जोन है वो, और उसमें कोई एसटीटी नहीं है, कोई सीटीटी नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, और वो सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए भी है, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में खास अंतर नहीं बचा है, दोनों साथ में हो चुका है, राइट। तो वो एक नज़रिए से किया था। तो भारत की जितनी बैंक है फॉरेन में, वो वहाँ जैसे दुबई में है या कनाडा में है या यूएस में है, तो वहाँ पे एलसी खोलती है, वहाँ पे लोनें देती है, तो वो आजकल गिफ्ट सिटी में से दे रही है, तो उनका खर्चा बच जाता है। बिकॉज आज ऐसा है, डॉइचे बैंक जर्मनी की है या बैंक ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका की है, उनके भी बैक ऑफिस तो यहीं पर है इंडिया में, तो हमारी बैंक के वहाँ पे फिजिकली क्यों खोल रही है, यहाँ पे कर रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे कर सकते हो। फॉरेन की जितनी बैंक है वो उनका भी अपना एक स्किल सेंटर बनता है। तो मोदी जी का वो भी आग्रह था कि जैसे हमने सॉफ्टवेयर का जो स्किल है वर्ल्ड को दिया, वैसे ही हम फाइनेंस का स्किल क्यों न दें। तो गिफ्ट सिटी एक तरह से फाइनेंस का भी स्किल सेंटर बन रहा है कि हजारों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, जिससे सेकेंडरी टर्शरी जॉब्स भी बनेगी। माने पान वाला भी होगा, दुकानदार भी होगा, टैक्सी वाला भी होगा, रिक्शा वाला होगा, थिएटर खुलेंगे, तो 10,000 जॉब क्रिएट होती है, तो माने प्राइमरी जॉब क्रिएट होती है तो 1 लाख दूसरी जॉब क्रिएट होती है। तो यहाँ पर लाखों जॉब क्रिएट होगी। आपने लास्ट वीक में भी सुना होगा गिफ्ट सिटी का भी व्याप अभी एरिया बढ़ने वाला है, उनका भी अब प्रपोजल आया हुआ है। तो ये प्रपोजल ये फ्रेमवर्क है कि वहाँ पर हम स्कूल्स खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, मकान भी बनाए रहने के लिए, और एक बहुत बड़ा एक केंद्र बनने जा रहा है जहाँ पे फाइनेंस की और टेक्नोलॉजी की जॉब्स आएगी। उसमें इवन यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। आपको अभी वाइब्रेंट गुजरात जनवरी में आने जा रहा है, जनवरी 24 में, तो उसमें आपको 2 या 3 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वहाँ खुलेगी, उसका उद्घाटन होगा। तो उसमें जो निफ्टी की बात थी ये थी कि हमारा निफ्टी तो हमारा इंडेक्स है, वो सिंगापुर में चल रहा था, तो सिंगापुर में नौकरियां बन रही हैं। वहाँ पे लोग बैठ के बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ भारतीय इंडेक्स पे नहीं, इंडोनेशिया के इंडेक्स पे, चाइना के इंडेक्स पे, जापान के इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे थे। तो हमने कहा कि जब हमने खुद का इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गिफ्ट में खोला है, तो वहाँ पर ये जो निफ्टी इंडेक्स है उसको लाना चाहिए। तो वही जुलाई के महीने में हमने जुलाई 3 को शुरू किया। अब दिन में 2-3-5 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, कई बार 16 बिलियन डॉलर का भी ट्रेड हो जाता है। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.